بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
یا ربی بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خيرهم. والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الورى صحبك با قوسين او ادرى شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى محمد المجتبى الذي كان نبيا وبين الدين والماء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وصدق الله العظيم ورسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں باوز بلند محبت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ باوز بلند درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بادری الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کے بعد جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت کریمہ پڑھی، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ کے تحت حق بولنے کی اور سچ بولنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، میں نے دیکھا اس جمع و کثیر میں کہ درود و سلام جب ہم پڑھ رہے تھے تو آواز بلند نہیں ہو رہی تھی، مگر بات یہ ہے کہ ہر انسان نے اس قبر پہ جانا ہے جو آج ہماری جو بہن جو ہے وفات پا چکی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے وزیر وہ بھی اس قبر میں اونچی بولیں، وہ بھی اس قبر میں چلے گئے، اور بڑے بڑے بادشاہ اس قبر میں چلے گئے. اونچی بولیں، اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا باطن ٹھیک ہوگا. اور اگر وہ بہت بڑے بڑے وزیر چل گئے، بڑے بڑے بادشاہ چل گئے، اور اس قبر میں ہم نے بھی سب نے جانا ہے. اور یہ قبر جو اندھیری ہے، یہ جو قبر اندھیری ہے، یہ اپنے اعمال سے روشن ہوگی. اونچی بولے، میں تھوڑی توجہ دا محتاج ہاں، اگر تسی سمجھ جاؤ گے شاید ساڈی بخشش دا نظریہ بن جائے اور معلومہ کے لیے بخشش دا نظریہ بن جائے. عزیزان محترم، کہ اس قبر دے وچ اپنے اعمالاں نال بھی بخشیا جانا ہے اور یہ روشن ہونی ہے اپنی اعمال نال. اگر میں کتاباں چ پڑھیا ہے کہ جیڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਰਿਫਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ है, मेरा अल्लाह उस बंदे नु कब्र तो अंधेरी कब्र तो बचा देंदा है। उची बोलो यार, सुभान अल्लाह, सल्लु अला हबीब अस्सलातु वस्सलाम, उची पढ़ लो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। और मैंने मजीद पढ़ा हदीसों में कि मैंने हदीसों में पढ़ा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बंदा दरूदो सलाम का विर्द करता है, जो बंदा दरूदो सलाम का विर्द करता है, जिक्र करता है, शान बुलंद करता है, मेरा अल्लाह उसको दुनिया में भी और बरोज़े क़यामत भी पुरअमन रखता है। जी बोलो यार। और किधर गई नमाजें, जरा गौर फरमाए कि मेरे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जो दरूदो सलाम का विर्द करता है, मेरा अल्लाह उनके बातन को सुकून कल्ब अता फरमाता है, मेरा अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाता है, मेरा अल्लाह उसके ऊपर हिफाजत फरमाता है। एक आज बंदा हिफाजत के लिए किसी के पास चल जाए तो आज आपको एक गनमान के ऊपर गुमान होता है, ये होता है कि ये हमारी हिफाजत के लिए है। यारो, जिसने कायनात पैदा की, जिसने महबूब पैदा किया, जिसने सैयदना उमर फारूक जैसा पैदा किया, जिसने सैयदना सदीक अकबर जैसा पैदा किया, जिसने सैयदना उस्मान गनी जैसा पैदा किया, जिसने हैदर करार जैसा पैदा किया, जिसने गौस जैसा पैदा किया, जिसने खालिक़े कायनात ने दाता अली हजवेरी जैसा पैदा किया, जिसने बाबा फरीद गाय शकर सरकार रहमुल्लाह जैसा पैदा किया, जिसने बाबा बशीर सरकार रहमुल्लाह जैसा पैदा किया, जिसने ये मौलाना नूर मोहम्मद सरकार रहमुल्लाह जैसा पैदा किया, उस खालिक़े कायनात ने जिसके पास ताकत है, उसका महबूब फरमा रहा है, अल्लाह उसका आशिक और महबूब उसका मशूक। और अल्लाह ने शाद फरमाया, जो मेरा महबूब कह दे वो कुरान है, वो हदीस है, वो तस्दीक है और वो बख्शे का नजरिया है, वो बख्शिश का नजरिया है। मेरे यारो, बताना ये चाहता हूँ कि अगर हम नमाज पढ़ लें, ये हमें नहीं पता वो कबूल हुई कि या नहीं। जी बोले, कबूल हुई या नहीं। नमाज पढ़ के आ जाए, ये कबूल हुई या नहीं। असल कोई जो असी नेकी कर लेने कोई पता नहीं चलता कबूल हुई या नहीं, मगर मेरा अल्लाह दा महबूब दरूदो सलाम दी तस्दीक कर रहा कि जो तुसी दरूदो सलाम पढ़ लेना है, तुहाडे ते मोहर लग जानी है और मोहर स्टैंप लग जानी है कि इन नबी दे उत्ते दरूदो सलाम पढ़िया। सुभान अल्लाह। मगर मेरा मौज़ू सुखन खत्मे पा गए। अक्सर बात ये सुनने में आई है, कहते हैं कि साले सवाब कहाँ लिखा है, अक्सर कहते हैं ये खत्मे पाक कहाँ लिखा है। आज मैं आपको बुखारी शरीफ से एक हदीस मुबारक अर्ज़ पेश करूंगा, ठीक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा माजिदा अचानक वफात पा गई, मेरी वालिदा माजिदा अचानक वफात पा गई, मगर मुझे गुमान है कि मेरी वालिदा ने मुझे कुछ कहना है, जैसा कि ये मेरी बहन जो है वफात पा गई और भाई जो अब्दुल शकूर साहब अगर करीब नहीं थे तो उनको ये गुमान रहेगा कि मेरी वाइफ ने मुझे क्या कहना था। ऐसे ही उस आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझे गुमान है कि मेरी वालिदा ने मुझे कोई बख्शिश के लिए कुछ नजरिया बताना था, क्या या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोई खत्मे पाक दिला लूं, मैं कोई साले सवाब का सिलसिला कर लूं, मैं कोई दरख्त लगवा दूं, मैं किसी को पानी पिला दूं अपनी वालिदा माजिदा के नाम के, क्या ये बख्शे का नजरिया है? तो मेरे अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ये बख्शे का नजरिया है। मेरे अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया? ऊंची बोले, बख्शिश का नजरिया। और किसी को अगर डाउट हो, ये हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की 1388 नंबर है, 1388 नंबर बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान के बाद बुखारी है, कुरान के बाद, ऊंची बोलो, कुरान, जी यार बोलो, सारे मुसलमान बैठे हैं, ऊंची बोलो, बख्शे का नजरिया बन जाएगा। मैं रवायतां च पढ़िया है कि जिथे मजमा लगता अल्लाह पाक फरिश्ते नाज़िल कर दिंदा है, अल्लाह पाक फरिश्ते नाज़िल कर दिंदा है।
ਜਿੱਥੇ ਮਜਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ कि मैं फरिश्ते मुकर्रर कर देना। या अल्लाह तू फरिश्ते मुकर्रर क्यों करता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं नमाज़ां वाली फरिश्ते मैं नहीं मुकर्रर करता, वैसे मुकर्रर ने, लेकिन जो मैं इस वास्ते फिर स्पैशल भेजना फरिश्तियां नूं, इस वास्ते भेजदा कि मेरे महबूब का केड़ा जिक्र कर रहा है, और मेरे महबूब का केड़ा जिक्र है। उची बोलो, मेरे महबूब का केड़ा जिक्र कर रहा है। हुण देखो कि सानू फरिश्ते नजर तो नहीं आते फरिश्ते नजर, ते अल्लाह वाले इस मजमे दे विच किन्ने हजार फरिश्ते आए होणगे, और वो गवाही देणगे कि या अल्लाह फला बंदा जेड़ा है वो तेरा जिक्र ते सुन रहा सी, मगर बातन च गुमान जल्दी दा कर रहा सी। या अल्लाह तेरा जिक्र ते सुन रहा सी, मगर वो अपने टाइम नूं देख रहा सी। या अल्लाह तेरा जिक्र ते सुन रहा सी, मगर वो मन दे विचों जेड़ा है अपने कामां च वड़िया होया सी। या अल्लाह तेरा जिक्र ते सुन रहा सी, मगर तेरे नाल मुहब्बत ते करदा है, लेकिन जिक्र इलाही और जिक्र रसूलुल्लाह नहीं करदा। इस वास्ते जिक्र रसूलुल्लाह करो। अजीजा ने मोहतरम, देखो कि असी कुछ भी नहीं है, चंद मिनट टाइम लवांगा, असी कुछ भी नहीं है। क्या सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा की हस्ती कितनी बड़ी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे प्यार करते थे, और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला महबूब से प्यार करते थे, और प्यार भी ऐसा कि जलाल में आ जाते, उसके मतलब कोई गुस्ताखी की बात हो जाए, यार भी ऐसा। अल्लाह अकबर, जैसे कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा गश्त कर रहे, मैंने किताबों में पढ़ा कि एक औरत आ गई, एक औरत आ गई, कुछ ही बोलेंगे एक औरत आ गई। जब आई कहने लगी कि ये गश्त करने का क्या फायदा, हकदारों के पास तो हक जाता ही नहीं है, हकदारों के पास हक जाता नहीं है। अगर मुझे सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला मिल गए तो मैं ये शिकायत नहीं करूंगी, शिकवा भी करूंगी, गुमान भी करूंगी, इस बात का ज़ाहिर भी करूंगी क्या उमर फारूक तेरी हुकूमत में मुझे मालियत नहीं मिली, मेरी परेशानी नहीं दूर हुई। तो सैयदना उमर फारूक ने ये नहीं बताया कि मैं उमर फारूक हूँ। मैं बात नुक्ता एक समझाना चाहता हूँ, नुक्ता नजर। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने ये नहीं कहा कि मैं उमर फारूक हूँ। आज किसी के साथ बात हो जाए तो हम असला निकाल लेते हैं, अगर आप आज बात का कोई शिकवा कर ले तो हम डंडे निकाल लेते हैं। आज कोई भी बात घर में घरेलू हो जाए तो हम तमाचे मारने लग जाते हैं, सब्र का पैमाना हम नहीं पकड़ते। जैसे कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सब्र का पैमाना पकड़ा, उस औरत के सामने जाहिर नहीं किया, जब मालियत दे दी और कहा क्या कि उस औरत ने कहा क्या तुम सैयदना उमर फारूक तो नहीं हो? ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। यार क्या यार, तुम सैयदना उमर फारूक तो नहीं हो? क्या अम्मा कैसे पहचाना? कहा कि ये सैयदना उमर फारूक का तरीका है कि जो किसी की बात सुन ले, उनको पता चल जाए तो वो फौरन तावन कर देता है, उनका हक अदा कर देता है, उनका फौरन हक अदा कर देता है। तो हम किस चीज की मिट्टी है भाई? कोई एसएचओ लग जाए तो हम वो गमान में आ जाता है, आज कोई डीपीओ लग जाए वो गमान में आ जाता है, आज कोई एमपीए बन जाए वो गमान में आ जाता है, आज किसी के पास ओहदा आ जाए वो गमान में आ जाता है। मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो लोग गमान रखते हैं, शिकवा रखते हैं और बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह देख रहा है। अगर हमारे ज़हन में, हमारे बातन में, हमारे दिल में, हमारी सोच में ये बात फिट हो जाए कि हमें अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, तो हम कोई बुराई नहीं करेंगे, हम कोई भी बुराई नहीं करेंगे। हम अल्लाह को मानते तो जरूर है, हम अल्लाह को मानते तो जरूर है, हम उसके रसूल को मानते तो जरूर है, हम इसाले सवाब के लिए एहतमाम तो कर लेते हैं, मगर हमारे अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और मोहब्बत नहीं है। हमें मोहब्बत और मोहब्बत की जरूरत है, फिर बख्शे का नजरिया बनता है। अगर नमाज के अंदर नमाज पढ़ लें तो महबूब की मोहब्बत नहीं, ये कुरान में जिक्र है, मैं साबित कर सकता हूँ, महबूब की मोहब्बत नहीं, महबूब की अतात नहीं और अहले बैत मुतहरा की मोहब्बत नहीं, तो अल्लाह उस नमाज को कबूल नहीं करता। और इसी तरह खत्म पाक भी उसको कबूल किया जाएगा जिसमें आपका खलूस होगा। बताना ये चाहता हूँ, जिसमें आपका खलूस होगा, आपके बातन में ये हो जाए कि महरूमा के लिए बख्शिश हो जाए। तो बात ये कर रहा था कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ
हर वक्त हर टाइम रखना चाहिए। मैंने किताबों में पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मौत की भी कोई निशानी होती है? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि नहीं नहीं, कोई पता नहीं, यहाँ से कदम उठाए, कोई पता नहीं, यहाँ से कदम उठाए भी ना तो मौत आ जाए। इसलिए हर पल, हर टाइम, हर घड़ी अपने बातन को ठीक रखो, अपने इखलाक को ठीक रखो, अपने बातन को ठीक रखो, हर टाइम नमाज में कायम रहो और अदा करो। जो कहते हैं ना कि नमाज, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारी नमाज ही नमाज है। भाई उसका नुक्ता बताने लगा हूं। नमाज क्या है? कि नमाज कुरान में जिक्र जरूर है कि कायम करो, मगर ये भी तो जिक्र है कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करो। और एक रवायत होती है, मगर यहाँ हुक्म है कि मेरे रसूल के मुताबिक जिंदगी जिसने बसर ना की तो मैं अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं करूंगा। मैंने एक वाकया पढ़ा कुरान मजीद फुरकान हमीद में, अल्लाह ने अपने महबूब को मिलना तो बुलाया कि जिब्राईल जी रब्बे जलील जा मेरो आज अपने यार नु मिलन दिल करदा पिया। जी बोलो यार, मैनू अपने यार नु मिलन दिल करदा पिया। या अल्लाह केड़ा यार? उमर फरूक या सैयदा सिद्दीक़ अकबर या सैयदा उस्मान गनी या हैदर करार? या अल्लाह मुझे ये तो बता कि तेरा यार कौन है, आज तो बता दे। जिब्राईल ने जब अर्ज की तो प्यारे अल्लाह ने फरमाया कि जो वल्लैल की जुल्फों वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, यासीन के मुखड़े वाला, और यासीन के वल कुरान वाला, और युदुल्ला के हाथ वाला, और जो जो मेरा महबूब है, जो गुजरता है तो खुशबुएं फैल जाती हैं। जिब्राईल उस यार को मैं मिलना चाहता हूँ, जा मेरे महबूब को जाकर बता दे, मेरे महबूब को आशिक बता दे कि तेरा आशिक बुला रहा है। अल्लाह अकबर। कोई मौलवी ये मेरी वीडियो देख के फतवा ना लगा दे, मैं कुरान में ये साबित कर सकता हूँ। जब मेरे महबूब को बुलाया गया तो जिब्राईल को तलब किया, जिब्राईल ने ये जिक्र किया, जब जिक्र किया तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब को बुला ले। आज मैं ये बताने चाहता हूँ, आज हम नमाज नहीं पढ़ते, आज हम रोजा नहीं रखते, आज हम सदका नहीं देते, आज हम ज़कात नहीं देते, आज हम किसी का हक खा लेते हैं, हक तलफी खा लेते हैं, हक तलफी कर लेते हैं, और गमान में ला लेते हैं, गुस्सा और तकब्बर में रहते हैं, अपने काम में गुस्से में रहते हैं। यारो नहीं, ये बात नहीं, मेरा अल्लाह मोहब्बत के आगे झुक गया, हम क्या चीज है? मेरा अल्लाह महबूब के आगे झुकने का मकसद ये था कि अल्लाह को अपने महबूब के साथ मोहब्बत और प्यार है, और प्यार था। इसलिए महबूब को जब बुलाया क्या, मैं बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने जब जिब्राईल को भेजा तो जिब्राईल गया, महबूब को पूछा, अर्ज की कद मीन अल्लाही। अल्लाह ने फरमाया कि जिब्राईल मेरे महबूब के कदमों को बोसा देना है। जब बोसा दिया ना, बोसा दिया तो मेरे नबी अल्लाह अकबर जाग उठे, कहा जिब्राईल खैर है? कहा कि अल्लाह बुला रहा है। कहा जाओ अल्लाह को बताओ, अल्लाह को कहो कि तेरा महबूब ये कह रहा है कि पहले मुझे गारंटी दे कि मेरी उम्मत को बख्श दे। बोलो यार सुभान अल्लाह। बात नहीं आई, बात नहीं अच्छी बोलो। एक दफा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिन जिन का कोई फौत हुआ वो इसलिए के साथ पढ़े, बख्शे का नजरिया बनेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, जब जिब्राईल को ये कहा तो जिब्राईल रब्बे खालिक कायनात की बारगाह में क्या कहने लगा, अर्ज की, ए मालिक मौला, तेरा महबूब ये कहता है, तेरा महबूब ये अर्ज करता है कि वो मेरी उम्मत की बख्शे की गारंटी दे दे तो फिर मैं तेरे पास आऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जिब्राईल जा मेरे महबूब को कह दे कि तेरी उम्मत को बख्श दिया। तेरे उम्मत को उसी बोलो, महबूब ने गारंटी ली। तो हम क्या करते हैं? बोले है ना, महबूब के नाम की दाढ़ी रखते हैं, ऊंची बोलो, रखते हैं? नहीं ना रखते।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिसने गारंटी मांगी वो भी तो बाकर जा सकता था ना, मेरा महबूब जा सकता है। रब बुला रहा है, जिसके पास सारी ताकत है वो बुला रहा है। आज मेरे ख्याल से मुझे डीपीओ बुलाए तो मैं फिर, मेरा ख्याल है इस महफिल में मैं छोड़कर भाग जाऊं कि मेरा डीपीओ बुला रहा है महकमे का, कि भी बड़ा ऑनर वाला है। और मगर नहीं यार, ऐसा अमल मेरे अंदर भी नहीं है। ऐसे वाकयात कई हुए। एक जगह में मैं महफिल समा में बैठा था और डीपी ननकाने ने जब कॉल की और ऑनर लेवल ने जब कॉल की और ऑनर लेवल जो जूनियर आया उसने कहा डीपीओ बुला रहा है। मैं कहा मैं जिसके मिलाद में बैठा हूँ वो सबसे बड़ा डीपीओ है। और सन 2008 का ये वाकया है, ये तारीख ननकाने की दुआ है। उस वक्त जुल्फकार हमीद डीपीओ था। उस डीपीओ ने कहा कि इस मौलवी का दिमाग खराब हो गया। जब मैं गया उसके बाद फारिग होकर उसने कहा कि मौलाना ये बताओ तुम्हें गमान किस चीज का है। मैं कहा मुझे गमान नहीं है, मुझे यकीन है जिसके मिलाद के लिए मैंने इनकार किया वो जाने तो रब जाने। तो उस डीपीओ ने मुस्कुरा कर कहा कि मौलाना तुम नमाजें कराया करो, जमातें कराया करो, तुम बयान किया करो, नौकरी ना किया करो। अब मैं ये बताना चाहता हूँ तकवा कायम होना चाहिए, तकवा अपनी अपनी जमा में खड़ा होना चाहिए। आज मकान बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि अंधेरी आ जाए, तूफान आ जाए, मकान ना गिर जाए। और यारो अगर हम ये सोचे कि अपनी बुनियाद जिंदगी की जो हम बनाते हैं तो वो क्या मजबूत है? क्या वो मजबूत है? अगर जिंदगी गुजारनी है तो सैयदना सिद्दीक़ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जैसी गुजारो। अगर जिंदगी गुजारनी है सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसी जिंदगी गुजारो। अगर जिंदगी गुजारनी है सैयदना उस्मान गनी जैसी जिंदगी गुजारो। अगर जिंदगी गुजारनी है तो हैदर करार जैसी जिंदगी गुजारो। अगर जिंदगी गुजारनी है सहाबा के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अगर जिंदगी गुजारनी है तो कुरान में जो हुक्म है और मेरे मुस्तफा का जो फरमान है उसके ऊपर अमल करो। यकीन मानो मेरा अल्लाह रब राजी हो जाएगा और आपकी बुनियाद पुख्ता हो जाएगी। मगर अफसोस अफसोस हम अपने बच्चों के लिए बुनियादें तो पुख्ते कर लेते हैं इस मकान की। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ये आपको यकीन है कि आपका बेटा जिसके लिए तुम हलाल हराम की पहचान नहीं करते, जिसके लिए आप बातन और बाजार का पहचान नहीं करते, अपने ऊपर तवज्जो नहीं करते, सिर्फ बच्चों के साथ बहुत प्यार किया जाता है मगर हमें ये नहीं सोच आती कि हम बच्चों के लिए हलाल हराम कमाकर जो ला रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, उधर अज़ाब इलाही हमारे लिए तैयार हो रहा है। अगर हलाल कमाएंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो मेरे यारो बख्शिश की गारंटी मेरे महबूब ने दी है। अजीजा ने मोहतरम उस सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के नुक्ते पे आऊं। जब उस औरत ने पूछा कि तुम उमर फारूक तो नहीं हो, कहा अम्मा आपको कैसे पता चला कि वो मैं उमर फारूक हूँ? हो सकता है कि मैं उमर फारूक ना हूँ। कहा नहीं नहीं, ये उमर फारूक का ही तरीका है, ये उमर फारूक जैसा ही दिल है, ये उमर फारूक जैसे ही आंखें हैं, ये उमर फारूक जैसा ही इखलाक है, ये उमर फारूक जैसी ही मोहब्बत है, ये उमर फारूक जैसी ही रिफत है, ये उमर फारूक जैसा ही इश्क है, ये उमर फारूक जैसा ही अश्कबार अदबाना मौजजाना और आजजाना तरीका है। तो फिर कहा अम्मा मैं उमर फारूक, अम्मा मैं उमर फारूक, समझ आ रही बात की? कहा कि मैं उमर फारूक हूँ। तो कहा उमर फारूक, मैंने पढ़ा है किताबों में कि उमर फारूक के आगे उस औरत ने हाथ जोड़े और ऐसे जोड़कर कहने लगी मुझे उमर फारूक माफ कर दे, मुझे पता नहीं था कि तुम उमर फारूक हो। हाय हाय हाय, अगर अक्ल में बात नहीं आई तो कभी सुभान अल्लाह नहीं करी। अगर अक्ल में आ जाए, शऊर में आ जाए तो सुभान अल्लाह खुद ही निकल जानी चाहिए। तो बात ये है कि जब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला, फिर उसने औरत ने बताया वो अर्ज कर चुका हूँ। तो हमें ये बताना चाहता हूँ, हमें भी तरीका इस तरह का बनाना चाहिए कि आपके मरने के बाद कोई अच्छी सिफ्त बयान करे। मरने के बाद आपका इखलाक दुनिया में ज़ाहिर हो जाए। मरने के बाद कोई ये ना कहे कि उस शख्स ने मेरा हक खाया, कोई ये ना कहे उस शख्स ने अपने ओहदे का नजायज फायदा उठाया। वो बख्शिश नहीं है। मैंने किताबों में पढ़ा है नाजरीन, मैंने किताबों में पढ़ा है कि अगर 3 लोग मरने के बाद कह दें, 3 लोग ये गवाही दे दें कि ये बंदा जन्नती है, ये बंदा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले नफ्से ईमान, नाराए हैदरी। तो सैयदना उमर फारूक की बात हुई, इस तरह की अगर जिंदगी गुजारे तो बात ये कर रहा था कि 3 बंदे गवाही दे दें, 3 बंदे गवाही दे दें
अब मैं एक नुक्ता अर्ज करूंगा, फिर मैं कलील टाइम है, मुझे पता है कि सब लोगों ने कामों में जाना है, मगर बात यह है कि मैं नुक्ता क्लियर करना चाहता हूं कि 3 बंदे गवाही दे दे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस महरूम ने नमाज पढ़ी थी? मैं पूछना चाहता हूं क्या वो महरूम जो मरने वाला उसने हज किया था? मैं पूछना चाहता हूं क्या वो महरूम मरने वाला उसने उम्रा किया था? क्या मैं पूछना चाहता हूं क्या वो महरूम जो है अगर औरत है वो बापर्दा बाशरा थी? मैं पूछना चाहता हूं क्या अगर वो आदमी है उसने बाशरा जिंदगी गुजारी? नहीं नहीं, ये मालूम नहीं है, मगर मेरे अल्लाह के महबूब ने ये तस्दीक कर दी कि अगर 3 शख्स ये कह दे कि ये बंदा बख्श जनती है तो अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। जी बोलो, अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है, अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। तो मेरे भाइयों, ये 3 लोग गवाही दे दें तो यहाँ कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं? तो 3 नहीं है, कितने लोग हैं? काफी लोग ज्यादा है। अगर साबिक कहें कि ये औरत जनती है, आपके कहने का क्या हर्ज होगा? उसकी बख्शिश होगी, कल इसका सिला जो है आपके मरने के बाद अल्लाह भी अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ने वादा फरमाया कि जो दुनिया में अच्छा सिला किसी के साथ करेगा, बल्कि मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, अगर झुकने से, माफी मांगने से, पहल करने से अगर आपकी इज्जत जाती है तो क़यामत वाले दिन, मैंने यहाँ पढ़ा है, अब कोई गुस्ताखी का फतवा ना कोई मौलवी लगा दे, मैं ये हदीस बयान कर रहा हूँ, हदीस वही है जो मैं बयान कर रहा हूँ, उसमें लिखा है कि मेरा गिरेबान पकड़कर अपनी इज्जत का सवाल मुझसे कर लेना। अगर आपके झुकने से इज्जत जाए, अगर आपके सब्र करने से इज्जत जाए, अगर आपका तकब्बुर खत्म होने से इज्जत जाए, ये कौन कह रहा है? अल्लाह का महबूब कह रहा है कि मुझसे अपनी इज्जत का सवाल कर लेना। मेरे भाइयों, अर्ज ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर शान बयान करें तो दिन खत्म हो जाएगा और रात खत्म हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, फिर अगला टाइम आ जाएगा, मगर मेरे महबूब की शान खत्म नहीं हो सकती, खत्म कभी भी नहीं हो सकती। मरने के बाद उस मेरे महबूब की शान है। अजीज़ान मोहतरम, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान मजीद फुरकान हमीद में कि वल्लज़ीना यबीतूना रब्बिहिम सुज्जतन व क़ियामा, कि अपने कामों को सजूद बना लो, अपने कामों को रुकू बना लो, अपने कामों को सजूद बना लो, अपने कामों को, अपने जहनों को, अपनी सोचों को, अपने दिमागों को, अपने दिल को, अपने बातों को, अपनी रूह को सजूद बना लो, फिर जाकर ये नुक्ता क्लियर होगा, वल्लज़ीना यबीतूना रब्बिहिम सुज्जतन व क़ियामा। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ है कि जितने हाज़रीन नाज़रीन यहाँ बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ है बार बार कि जितने भी हाज़रीन नाज़रीन बैठे हैं और जो नहीं भी बैठे, उनके अहले खाना से कोई भी वफात पा चुका है, अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल समा के सदके, इस तिलावत के सदके, इस बयान के सदके अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल उनकी भी बख्शिश फरमाए और हमारी भी बख्शिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अना अअबुदु मा अअबुद वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافي البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع المصاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الآسقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا
فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے مالک مولا عز و جل، جو کچھ بھی محفل پاک ہوئی، تلاوت کی گئی، نعت شریف پڑھی گئی، بیان ہوا، ختم پاک پڑھا گیا، دوست احباب نے، گھر والوں نے یہ قرآن پاک پڑھے، 53 قرآن پاک کا ثواب، سورہ یاسین 15 سپارے، سورہ ایمان، سورہ ملک، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور 5000 مرتبہ درود پاک، آیت کریمہ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی پڑھا گیا، اس کو اپنی پیاری بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، اس میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما۔ اس کا ثواب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کے ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابیات، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے خندق، شہدائے احد، شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، اس وقت حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ غوث میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کے سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا نور محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ، اور تمام بزرگان دین رحمہم اللہ الدین بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی برکت سے بھائی پپو ان کی اہلیہ محترمہ کو اس حساب وصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس زندگی میں رہتے ہوئے عمدن سہون جو بھی غلطی بتائی ہوئی اس کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، مرحومہ کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، کل بروز قیامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، میدان محشر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا سایہ عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو والحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار۔ اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔